So we Yes. won't be discussing assignment 1 questions, the leftover, the last. So once I will receive assignment 1 from you people, then I will discuss the leftover doubts. So Because we also haven't done the compound interest, simple interest, the question in the end. That again, that area of the circle pi r square, and a few and one or two more questions which are in the assignment 1. okay, let's do one thing. I will open that and I will start discussing that first. Give me 1 second. Also, one more thing, sir. Do we have to submit the solutions in like paper pen format written in the Arey, no. As a PDF, no paper pen. Just type it, put the screenshots of whatever you receive. So let's do this thing. Give me 1 second. Yeah, so if you open this link or maybe search for online C compiler, this link comes up, online GDB. This was the website that we were using last time. I hope you people can see. So let's do quickly. First, I want to cover the area of circle. So what you can do is there are two things. One thing is if you want to put the value of pi, you can do it like this: float pi equal to 3.14, and then you can also maybe put the value of radius, float r equal to maybe 5. If you want to do it through scanf, we will come to that. Then you can just print the area. So printf area equal to %f, and what we can do is I can do the calculation here itself, p into r into r. So if I run this program now, the answer will be around 78, and this is how my area of circle works. So there are two things here. What we can do, we can update the two things. One thing is that I can get the value of r from the user. Let's say I want to get it from the user, so this is how I can do it. I will have to enter the value, so I can maybe write the comment also that enter the value of radius, enter the radius. So if I run it now, I will have to enter the value of radius, let's say 10. So the answer will be 314 point this. So now, because I had put this 3.14, the calculation is very simple. There is one more technique. If you want to directly use this pi without defining it here, what you can do is you can maybe do one more thing. You can put it here as hash define pi as 3.14. So this is one of the technique to define a constant. जैसे हम include use कर रहे हैं, we are using the include to include some library, but the same thing can be done through this hash define. Hash define helps us to define a constant number. So you have to tell the variable that what is the variable name, and then you can put the value and maybe whatever you write here. Let's say it looks like this. Now if you run this program, obviously you have not done any kind of what we say definition of float variable within the program. If you remove this, I have already commented it, but I will still remove it. If you remove this, now still it should work because I have defined this pi value as 3.142857. So this number will go and replace this value when the statement will run. So let's run it. You have to still enter the value of radius 10. If you run it, still the answer is fine. Okay, ji. So this is the second method that you can use to define a constant value, because I knew that pi value will not be changed. So that's why I have defined it as a constant. Any doubt in this? So don't we have to define the area as pi r into r in a separate line? Or Yeah, do we need you can do that. So if you write it as this float area, you can do this as area equal to this thing pi into r, and then we just write area there? yeah, you can do that. So this is also possible. I was just not wanting to use this because it will reduce the
amount of memory this program will take. Yes, sir, understood. Yeah, so Excuse it will me. Also, run. also, sir, what about the when we write pi r into r in the return section, which was in the PDF? I'm not aware of what you are saying, but then this can also be done like this. Let's say this is, wait, don't interfere. I mean, don't interrupt me right now. Define area as pi into r into r. I think this thing has to have some value, but let's test it if this thing can get the work done. So if I write this as this thing, so now my area, I think error will come because it can't do two things in one line, that area will be replaced by this and then pi will get replaced by this. So let's still try it. I think error will come. Yeah. Okay, area pi. Yeah, it's an error. So it has to have some number on this side. But then what you are saying is return area. In that case, you will have to make your own program. In fact, make your own small function. Let's say float area. And within that, maybe pass the value of radius. So are you talking about this kind of a function? Yes, sir. Yes, sir. It was this kind of function. Okay, so this is not in your syllabus right now because we have not reached that chapter of functions. I'm sure that functions have not been taught to you in the lectures till now, but you can still do this. Return pi into r into r. So what you can do is, I mean, what you can or what you have to do is you have to do this like so. After getting the value of r, no area required at this moment, enter radius, and then area equal to, within that area you will pass the value of radius. So this is called function call by value, because we are calling a function here. This is called a function call. This is called a function call. You are calling a function area r, where you are sending a value of r that has been inputted by the user. So this r will go here, okay, and this r will get the same value what I will be inputting, and this function, because this function has a return type of float, so this calculation will be solved considering that the answer is in float. This area function will return a value which is a float number, and this thing will get some feedback from the above function. That will be the answer. So let's run it. Now if I still input the value of radius, just give me 1 second. Yeah, if I put it 5 here, the answer will be still 78.57. The answer is correct. Yes, sir. Yeah, so this is one of the way. There are multiple ways to do a simple program. This is a very simple program, and someone has already put the answer in the chat box. ये एक बार बताना, ये ठीक है कोड जो मैंने आपको सेंड किया अभी? What I will do is I will copy paste your code here. Give me 1 second here. So I'm copy pasting it, removing this thing. अरे कॉपी नहीं हुआ क्या? सर ये कॉपी नहीं ना होगा? कॉपी नहीं होता ये? नहीं सर। वो चैट सेक्शन वाला कॉपी नहीं होता। अच्छा, सर मैं चलो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ स्क्रीन शेयर कर लो. Give me 1 second. 1 second, I will give you the permission. Who wants to do the screen sharing? Can you speak up? वासु। Vasu. Okay, 1 second. I'm making you the co-host. Now you can screen share. I'm stopping my share. Please do it now. Yeah, someone else was saying. तो मेरी स्क्रीन आ रही है, शो हो रही है? हाँ जी आ रही है. तो एक बार चेक कर दो ये कोड ठीक है? Radius as 75, 3.14 into, yeah, I mean it's also correct. You have not used the pi variable, but you have this you have given this as a constant value directly. It's fine. ठीक है. Thank you. Okay, stop your share screen. So we'll be studying those functions which you discussed right now later on. Yes. So I think that functions will come as a 4th or 5th chapter of your C programming book.
So we will come to that in 2-3 labs. So for now, we can use the basic method, like Yes, whatever we have yes. learned till now. Whatever we have discussed till now, yes. Excluding that function call thing, you can use other methods till now. So there was something else that you want to discuss? Anyone other So doubt? Compound there were interest. Compound yes. interest. Compound interest. Okay. So what is the formula of compound interest? Anyone? Amount का formula पता है? Bolo. Amount is equal to P multiplied by 1 plus R over 100 whole to the power time. 1 plus r by 100 raised to power time, right? Yes, sir. तो अगर तुम्हें अमाउंट पता है, इसका मतलब तुम्हें CI भी पता है, जस्ट माइनस Yes, sir. वो P माइनस पी कर minus. देंगे. हाँ Yes, sir. ठीक है. तो CI को हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस पी. ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं. Yes, sir. Okay, so let's work it. जल्दी से करते हैं. What I have to do is I have to first hash include, right? Hash include stdio.h, because in any case I have to use the value of scanf. We have to get the values of PRT from the user. So it will be int main, and I have to get the values of PRT. So it will be float, because I know that the answer will be in points. So I want to keep it safe and put the values of PRT as well as amount as float. I have now declared it. And after that, I have to get the values from the user. So I can do it by scanf. %f %f will be 3 times. If I do it 3 times, it means that I have to consecutively enter the value of PRT. And then I will also have to put this thing %p, %r, %t. Fine. So now that we have this value of PR and T, I can calculate the amount value. And also I want to have the CI value. So let's include that also. Amount equal to that formula. So I know that for this raised to power T, I will have to use the power function. So I can do it like this: hash include p mat.h. सर ये कौन सी हेडर फाइल है? क्या कह रहे हो? सर ये math.h भी एक हेडर फाइल ही होगी, क्या हाँ, है इसका काम? हेडर फाइल है. हेडर फाइल क्या होती है? अच्छा, ये- इसमें सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. हाँ, मतलब हेडर फाइल का मतलब तो यही है ना कि कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड है, बस मैथ्स का है इसमें. इसका तो नाम से पता चल रहा है. STDIO में तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट था, scanf, printf, getchar, putchar, वो सारे इसमें थे stdio.h में. बट नाउ आई वांट टू यूज द पावर फंक्शन, एंड पावर फंक्शन मैं अभी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू इंक्लूड इट. So I will have to do this thing, this calculation p into, now I know that raised by t has to be done, so I will call the power function. And in power function, what we can do is a comma b. This kind of a thing has to be there. A comma b here means that a raised by b. Okay, so now I will have to write that formula in this a comma b format. So it will be 1 plus r upon 100 comma t. So 1 plus r upon 100 is my a, t is my b. So a raised by b will be 1 plus r upon 100 raised by t. So this is the thing that I want to calculate as amount. My CI will be equal to amount minus p. Now I can go ahead with the printing. So printf, the amount is %f, and the CI is %f. So I have to put the values as it is. Amount will be going to the first %f. CI value will be going to the second %f in the statement. Now if I run this code, I will have to give 3 inputs, PR and T. Let's do it. Let's say that my principal that I will be using is 100. My rate will be 10% and my time will be 2 years. So what do you think that amount and CI should be? Quickly. Can anyone tell me the answer? What will be the output? 4.
हाँ जी, नहीं, what is the amount? 400 होगा सर शायद। अरे no, it is 121. इतना तो हमें सबको 121। पता है, इतना तो हमें सबको पता ही है। हाँ ये हाँ, तो मतलब what I want to highlight here is I want to also make you revise the compound interest because maybe someone has forgotten it. So I will write it quickly. How this CI works? CI works in a way you have to calculate SI for 1 year. Let's say my SI for first year will be 100 into 10 into 1 by 100. It will be equal to rupees 10 in case my principal is 100 rupees. And for second year simple interest, I have to update my principal. I have to add this 100 to my interest. So this second year principal will be 110 and it will be equal to rupees 11. That's why my total compound interest is 21 and principal is and this amount is 121. So is this concept clear that how this compound interest works? yes sir। So Yes, please sir. explain line number 9. So okay, I will explain line number 9. So in line number 9, we are just simply doing this thing that I wanted this value. Give me 1 second. So इसका मतलब ये है that now my amount is equal to 1 plus r by 100 is per t that I know as a formula. So this amount is equal to this thing. Now how this formula works, I will simplify. This p is this p. ठीक है, उसके बाद I want to multiply this thing and it can be gotten from this point. Now power function, how it works? It works in a way, let's say a comma b है मेरे पास and this power function a comma b means a raised to power b. ठीक है, and this is my a 1 plus r upon 100. This is my a raised to power b means t at this point. So this is how we are calculating the amount. Clear how this amount statement Yes, works? sir. Okay. Got it. Okay. Yes, sir. Any other doubt? Anyone? Excuse me, sir. Yes. So can you explain the question of that nth root one? Yes. So nth root, we will solve it right here. So nth root is very simple. Most of the things we have already written here. So I will write it as m comma n. Now my target is to find the nth root. Let's say nth root of m. So nth root of m means I have to do this thing, right? And सर m raised to the power 1 by n, वहाँ पर सिंपल n लिखते हैं। हाँ, yes. So nth root means this. ठीक है? yes So this my power will be 1 by n here. So यहाँ पे ये n आएगा. Clear? So Yes, sir. nth root means this. Now you know that how this power function works. It means that I have to put my a here and then because my power is 1 by n now, it will be 1 by n. So this will be m comma 1 by n. I will quickly do it. Give me 1 second. So let's say I'm getting the value of m and n from the user. Deleting this. So my nth power will be, answer will be power of m and it will be 1 by n, right? And I can, आंसर को डिफाइन। so now if I write it as my answer, it will be equal to 2% एफ आएंगे ना तो वो तीसरा भी इनपुट मांगने लग जाएगा स्कैन ऐप में। हाँ ठीक है। So answer is this. Now if I run this program and I give the value of m as equal to 100 and n as 2, what will be the output? 10. n Yes. Now because my return type was float, so that's why it is showing it as 0.00006 times. What you can do is maybe you can
put it as 0.1f. So this will contain your output. It will not have multiple values after the dot. It will have only one because I have written 0.1f. So now if I do it for 1000 and I want to find a cube root, it will be again 10. It will be 10.0. Now because I have written here 0.1f, it means that it is stopping it after one decimal place. Clear? This is how we work with the nth root program. Excuse me, sir. Yes. सर मैथ हेडर फाइल में कौन से फंक्शंस हैं? बहुत सारे हैं, ठीक है. we can, जितने भी हमें पता है वो सारे तो होंगे. हाँ मतलब होने चाहिए. Even I don't know कितने हैं. I have not gone into और the सर detail of हेडर math. फाइल्स कितनी इंक्लूडेड हैं सी में? I don't know exact number. You have to explore it yourself. Generally, we don't go into this kind of details because it does not have any limit. Someone might There are about 19 files, I think. someone Can might see. include more header files. Okay, it depends that how the C programming is being updated by the organizations which are trying to do it. So this is your assignment 2, where the first question is about this math.h only, and within this math.h your work is to work around this sine, cos function, log function, par, and sqrt function. So these are the few questions that you need to solve. Let's talk about, I mean, we have already seen the par. Let's look into the square root function. So if I want to find a square root of something, I have to just do it like this, and I can put it like this. So square root of m comma n will be, if I put square root of it will have only one number. It will not have multiple inputs. So square root means that you have to find square root. It means that raised power 1/2. So square root of m will be printed here. So तो if I am, फ्लोट में भी तो चेंज आएगा. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर हमने जितने मर्जी एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए अगर यूज ही नहीं करे तो उसका कोई काम नहीं है. So if I want to find the square root of 64, it should be 8, right? So that's why answer is 8. So if you want to remove n from here, you should. Square root वाला भी हो गया. सर क्यूब रूट के लिए क्या लिखेंगे? जैसे स्क्वायर रूट के लिए SQRT लिख रहे हैं. हाँ तो क्यूब रूट के लिए आप पार फंक्शन यूज कर लो, कॉमा 1/3 कर दो बस उसको वहां पे. अच्छा ओके. स्क्वायर रूट तक के लिए What? स्क्वायर रूट तक के लिए ये मतलब ऐसे क्यों? सर वो जो डिफाइंड है मैंने सर वो SQRT टाइप लिख रहे हैं ना. SQRT ज्यादा यूज होता है, स्क्वायर रूट निकालना ज्यादा यूज होता है, तो उसको अलग से बना दिया गया है. बट अदरवाइज पार फंक्शन वर्क्स फॉर एनी पार. It can be used for 1/n also and raised per n also. तो Okay, पार sir. फंक्शन इज मच पावरफुल. ठीक है. सर स्क्वायर रूट के पहले हम नहीं डिफाइन करेंगे कि वो फ्लोट होना चाहिए या फिर इंटीजर. स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है, ठीक है, तो हमने उसको फ्लोट रख लिया. स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आ सकता है. अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 65 निकाल लूं तो वो पॉइंट्स में होगा, राइट? यस सर. So that's why I have taken it in advance as a float number. सर एक और चीज सर, लास्ट में हमारा जो असाइनमेंट 1 है उसके ना ग्रॉस सैलरी है. ग्रॉस सैलरी में हम क्या कहते हैं, मतलब वही सारे डिफाइन करके उसके बाद फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड भी बनाना है. वो कैसे हम आपको शो करेंगे? फ्लो चैट एंड सूडो कोड नहीं चाहिए मेरे को. आई फॉर नाउ आई ओनली वांट योर कोड्स. ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि वो ऑप्शनल है, स्टार लिखा हुआ है वहां पे. तो मे बी यू कैन make codes for now, and you can make this flow chart and other things for yourself later on. That I don't need. Okay. सर उसके ना थोड़ा 10% 12% करके भी निकालने हैं चीजें. हाँ तो मेरे को आप क्वेश्चन में एक बार यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. गिव मी 1 सेकंड. क्वेश्चन 11 है. हाँ ठीक है. सबमिट कैसे करें? सर यस. सर हमने ये आपको असाइनमेंट कहाँ सबमिट करनी है? In Google Classroom. That's why I am getting your email IDs today. I have already shared that link multiple times in the chat box. You can fill your details there. आप थापर ID अपना वहाँ पे डाल दोगे. You will receive one invite today from Google Classroom, and within that Google Classroom you can upload that assignment 1. I will send the link. I will put the link there that you have to click and you have to submit. Okay. ओके सर. Okay. आप अपना फोन नंबर शेयर कर दोगे? No. फोन नंबर की बजाय ईमेल आईडी सबको पता है. Does everyone know my email ID? No, sir. Okay, I will write it here. So my email ID is sahil.sharma at
thapar.edu. So what you can do is if someone gets some error, जैसे आज chat box में मेरे को एक कोड आया कि सर ये चेक कर दो, चेक करने के बजाय अगर किसी का एरर आ रहा है, what you can do is you can copy your code and copy your error. तो यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ एरर आएगा, इन दोनों को आप कॉपी करेंगे. You can paste it as a text in the email body, and then you can send it to me. If you send a screenshot, it will be difficult for me to diagnose because then I will have to type और मैं नहीं करूँगा. ठीक है? It is better if you send me your code as well as your output or maybe the error as a text in the chat in the email ID, and you can email it to me send it from your email ID of Thapar only, so that it does not go into the spam box. Generally, if you send it from your personal email ID, let's say at gmail.com, that goes to the spam box sometimes. So that's why I'm saying that send it from your Thapar ID only. Okay. Yes, sir. So please आप एक बार फॉर्मेट बता दीजिए ना, किस फॉर्मेट में मैं असाइनमेंट 1 लाइक कंप्लीट करना है और आपको सबमिट करना है. फॉर्मेट कुछ नहीं है उसमें, जस्ट यू हैव टू मेक वन सिंपल पीडीएफ. उस पीडीएफ में राइट द क्वेश्चन, राइट योर प्रोग्राम, शो द आउटपुट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स इट. Like screenshot. Screenshot, yes. Screenshot of output, and maybe you can paste the code. So like we use Microsoft Word. So question number 1 we copy and paste from the assignment itself. Yes, yes. Then we take the Yeah. screenshot of the code. No, Sorry, no, no. we You paste the paste code. your code, as it is. जैसे statements हैं ऐसे ही आ जाएगा. And maybe you can put the screenshot also. It will be fine with me because sometimes there is one issue in MS Word that किसी ने कुछ indentation करा हुआ है तो वो indentation खराब हो जाता है code का. Yes, if you just copy paste this code into the Word file, and maybe you have written your code like this, something is here, then something is here. So this indentation, that space which is available here, it sometimes goes away when you paste it into the Word. You can put the code ka screenshot, but if code is very large, then you can paste it as it is. ठीक है. And then also screenshot of output. screenshot of output का आप copy paste मत करना, just put the screenshot because I want to look into exact things that have been written here, so that output will be there. Even and then yeah, followed by the second question and then so on, like that. yes, yes. If Okay, it is 11 questions or 10 questions, you have to complete it the way it is. So ये हम कब तक submit कर सकते हैं? Generally it should be 1 week. Let's say now this 12th of October is today, so deadline should be around 19. ठीक है. And मतलब that's preferable that you have to submit your assignment just before the start of your lab. Let's say today your lab started at 9:40, you have to submit your assignment by 9:39. That's the deadline. Okay. So for assignment 1, Yeah. assignment 1 only na? No, every time. So whenever new assignment comes, so you have to solve as much as questions that you can, and you can submit it in the Google that. I will also give the deadline in that Google Classroom itself. So based on that deadline also you can give your you can submit your files. Yeah. Sir, deadline आप कहाँ दोगे? Google Classroom में जब आपको notification आएगा when assignment will be uploaded in the Google Classroom. So what happens is, let's show you this thing. I will not log into this right now, but on this Google Classroom I will send you invite, and then if you accept that, you will get the notifications whenever I will put one new assignment there, and that deadline will be there itself written with it. Okay, you will have to just submit within that classroom. Okay, now let's talk about some other functions. So you can explore this sine, cos, and log on your end, but now find the roots of quadratic equation. So how will you find the roots of quadratic equation? Anyone? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. बताओ कैसे करेंगे, पूरा बताओ. सर हम वो क्या कहते हैं डी वाला फॉर्मूला पहले डिफाइन करेंगे एंड देन वी फाइंड आउट वो एक्स की भी डिफाइन करेंगे क्या फॉर्मूला होएगा. सर सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट जो मतलब कोएफिशिएंट्स हैं उनको डिफाइन करना होगा ए बी सी को. Yeah, let's define the coefficients. Let's say my coefficients are a b c. ठीक है, where my a is coefficient of x square, so I will write it like this. It is like ax square plus bx
plus c, ठीक है. तो if my quadratic equation looks like this, तो I will get the values from the user, right? So it will be scanf percent f for a, b and c, तीनों लेने पड़ेंगे. So it will be percent f, percent f, percent f. And you can also do it like this. अगर आप बीच में comma डाल के करोगे, it is also fine. So it will be a comma b comma c. So once all these values are with us, now how will I have to how I can calculate the roots? Quickly tell. So we define d. Okay, how? So d is equal to Minus we'll b. put minus E square minus so 4 b square minus 4ac. B square minus 4ac. Okay, so it will be b into b minus 4 into a into c. That's it. Yes sir. हो जाएगा इससे. सर वो सर फिर हमें d भी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसके बाद x में d यूज करना है. फ्लोट में d भी डालना पड़ेगा. फ्लोट में d डाल तो दिया अब. सर ऊपर. अच्छा ये भी अच्छा इंक्लूड हो गया. ठीक है. Okay. ये तो हमने एक ही बार में कर दिया. So let's do it. देखते हैं क्या आउटपुट आता है. सर अभी x बचा है वो. कैसे बताओ. सर x is equal to minus b plus minus under root b upon 2a. So float x equal to minus b plus minus under root d. अब प्लस माइनस यहाँ पे तो नहीं आएगा इकट्ठा. एक रूट निकल जाएगी, प्लस डाल दो. सर पहले तो सर पहले- दो पहले- में डालेगा सर, प्लस x एक and- माइनस. सर एक x डिफाइन कर देते हैं, एक y डिफाइन कर देते हैं. हम x1 और x2 ले लेते हैं ना. हाँ, x1 x2. तो क्योंकि वैसे भी ये x1 x2 ही तो है. यस सर. सो x1 कैसे निकालेंगे. माइनस b अंडर Plus- रूट d under root d. Okay, so that it means that I have Square to root. use the power function. पावर. हाँ, स्क्वायर रूट भी यूज कर सकते हैं पर मैं पावर ले रहा हूँ. अंडर रूट d, right? So it Yes, will sir. be d comma 1 1 by by 2. 2. ठीक है जी. So now सर अपॉन 2a भी है टोटल. सर अपॉन हाँ, yes. You people have done this newly and it's been 13 yes, sir. years for me. Okay, so minus b plus this thing divided by 2a, right? Yes sir. Okay, so now float x2, it will be equal to just this sign will be minus, right, within this. Yes sir. Okay, printf. सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि पहले हम d चेक कर लेते हैं ग्रेटर हाँ, देन 0. अब देखो, अब जितना आप कॉम्प्लेक्स करना चाहो, if you want to include more things into this, you can do this. मुझे याद है ऐसा होता है that it should be greater than 0. सर इसमें पर ये x1 और x2 ओवरराइट नहीं हो जाएंगे? Override Like कैसे वो होंगे? जो इक्वेशन जैसे जो ax square plus b, अच्छा वो स्टेटमेंट है, राइट, ठीक. हाँ, वो तो कमेंट है ना. Okay, समझ गया. so now let's print it. Printf, it will be I want to print the values of d. यही क्वेश्चन है that I want to print the values of d. Sir roots. Okay, roots x1 and x2. Okay, so it will be %f, comma x1 and x2. Okay, let's run it. Okay, what should be the value of a, b and c? एक second, क्या हुआ? Oh, it should have this ampersand here. 1 second. In scanf, it is compulsory to do Yes. this thing. बताओ, what should be the values of a, b and c? Square minus 5x plus 6. Minus One- 5, 1 Constant. minus 5 and 6. 1, comma, minus 5, 5. comma, 6. Yes. It means my equation is x square minus 5x plus 6, right? Yes, sir. Okay. इसके रूट्स 2 and 3 होते हैं शायद. हाँ, ठीक है, तो आसान है, हो गया. Yes sir. Yes, पर d sir. की वैल्यू ऐसे जज करना कैसे, अगर इसमें हमें d, अच्छा वो if लेना पड़ेगा. सर हाँ, वो तो अपने बैकग्राउंड में ही सॉल्व कर लेता है d की वैल्यू एंड
it only gives the final answer which we want from printf. Yes, yes. So what I'm doing here is I'm just printing the values of x1 and x2, but वो background में नहीं कर रहा. We have done the calculation for d also. ठीक है, तो इसी d की वैल्यू को वो यहाँ पे यूज कर रहा है x1 और x2 के पावर फंक्शन में. Yes sir, clear सर sir. वैसे अगर हमें बताना हो कि ये तभी करो जब डी रियल है, हाँ, तो उसके वो लिए इफ यूज करना पड़ेगा. ये तो if कंडीशन आएगी, अभी हम if नहीं लगाएंगे, राइट? Yes, sir. You have not been taught about that. सर So मैं हम लेक्चर में अभी थोड़ा सा condition- बता दिया है if का. if का बता दिए. Yes sir, बस else 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 का अभी else स्टार्ट नहीं करना है. बस स्टार्ट इनिशिएट किया हुआ है. है. Yes अरे sir. कुछ नहीं है उसमें, कोई महाभारत नहीं है. If d is If greater than d is 0, greater than 0, then do this, right? ये सब करना है. अगर मेरा d greater than 0 है तो मैं क्या करता हूँ, इनको शिफ्ट कर दिया. एंड अगर वो नहीं है ऐसा तो फिर क्या एरर आएगा? the roots are imaginary. हम ऐसे करते हैं, printf no roots exist. इमेजिनरी Roots are रूट्स, बस imaginary. इमेजिनरी No रूट्स लिख real- देते हैं. सर वो d को greater than equal to 0 कर दो. ठीक है जी, हो जाएगा. printf के बाद वो सेमीकोलन डाल. हाँ मैं करता हूँ, एक सेकंड बस, मेन भी बंद करना था. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये आपका पूरा प्रोग्राम है where you have given this float a, b and c, and then scanf में we will get the values of a, b and c. d should be this. If my d is greater than equal to 0, it means that the roots are real and we can calculate them like this, and we can also print it. अगर ऐसा नहीं है, if this condition is not true, मतलब देखो जो ये if का अंदर वाला है works नहीं, in fact enter only if condition is true. ठीक है, and else वाला क्या है? enter only if condition does not work. सिंपल है, आसान है, राइट? अगर मेरा ये सपोज d माइनस में आ जाता है, इट विल नॉट एंटर इनटू दिस एरिया. वो नीचे else के पास आएगा और वो चला देगा इसको. else में हमको कंडीशन भी नहीं चेक कर रहे क्योंकि वो ऊपर से फेल होके आया. इसका मतलब उसका ये प्लान बी था. समझ आ गया? सर अगर एक से ज्यादा है else तो वो else if आता है. हाँ, तो फिर हम ऐसे कर लेंगे ना, else if यहाँ पे फिर कंडीशन आ जाएगी कि d is less than 5 या -5. ठीक है, तो फिर वो दोबारा से if else चल, मतलब else if आ जाएगा और वो कंटिन्यू रहेगा. ओके ठीक है, सर. अभी के लिए मैं सिर्फ else रखूंगा. So हाँ जी. सो मेरे को एक बात समझ नहीं है, जैसे इफ में d greater than equal to 0 है, उसके आगे हम ये सेमीकोलन क्यों डालते हैं? सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन कब डालते हैं End बताओ? of a sentence. एंड ऑफ ए स्टेटमेंट. अगर मैंने इसको यहाँ कर दिया बंद, तो इसका मतलब इफ के अंदर हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो कंडीशन चेक कर रहा है पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा. ये मतलब इसको ये मत समझो कि आपका इफ यहाँ पे खत्म हो गया. एक्चुअली तुम्हारा पूरा इफ यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू करने का सोचा, फिर आपने उसको एल्स के साथ भी जोड़ दिया, तो आपका टोटल ये इफ एल्स यहाँ पे खत्म हुआ. इसलिए हम इफ और एल्स के साथ यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ काम करवाओगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है. दैट्स व्हाई वी डू नॉट पुट ए सेमीकोलन देयर. राइट. ओके, यस. any other doubt? No, sir. Okay, let's discuss this one. I think I have already covered it, but I will again cover this N, T and B. सर B नहीं हुआ. हाँ जी, B नहीं सर हुआ. B नहीं हुआ. ये नहीं हुआ. अरे बहुत आसान है, एक सेकंड दो बस. printf, what I want to do is, let's say I want to print hello world and I want to put \n here. Tell me the output क्या आएगा? सर हेलो एक लाइन में सेकंड में Hello, वर्ड. नीचे वर्ड. Hello और Hello word एक second line में- line में. hello and world in 2 lines, right? आ गया output. Yes sir. तो अगर मैं यहाँ पे t डाल देता हूँ फिर क्या होगा बताओ? तो स्पेस आएगा. Space आ जाएगा. 5 spaces आएगा. 8 spaces सर टैब के हाँ, बराबर. टैब के इसमें 3 है. ठीक है, देखो यहाँ पे ये 1 by 1 1 2 3. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर के
3 है 5 है कम ज्यादा का, इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, बट इट इज मोर देन सिंगल स्पेस, इसलिए टैब होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे \b करूंगा, एनी आइडिया अबाउट दिस, एनीवन? तो नेक्स्ट लाइन के साथ स्पेस भी आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन के साथ स्पेस मतलब? सर बैक स्पेस, दोनों में स्पेस ही नहीं होगा शायद। बैक स्पेस का मतलब ये है, अब अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैंने कुछ टाइप किया, लेट्स से आई एम टाइपिंग दिस हेलो, उसके बाद मैंने एक बैक स्पेस दबा दी तो हेल बन गया। हाँ जी सर। ठीक है, तो फिर आपका आउटपुट भी हेलो वर्ल्ड आएगा। लेट्स सी। ठीक है जी, बैक स्पेस का जो काम होता है वही कर रहा है ये। हेलो के बाद बैक स्पेस करोगे तो ओ उड़ जाएगा, हेलो वर्ल्ड रह जाएगा। एनीवन, एनी इसका अदर डाउट? फायदा क्या है? हाँ जी, फायदा पता होना चाहिए, फायदा तो बाद में देखेंगे कभी अप्लाई करोगे तो। सर जैसे हमने टैब के साथ बैक स्पेस किया तो वो एक स्पेस बैक ले गया, फिर पूरा टैब बैक कर देगा। गुड क्वेश्चन, देखते हैं करके। एक करा, 3 के बजाय 2 रह गए। राइट सर। ठीक है, ओके, एनी सर अदर टी डाउट? टैब स्पेस के लिए है टैब, हाँ यस, और बी सर बैक स्पेस, ओके। सर कंपाइलर जो है ये स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही है। यस, स्पेस इज आल्सो कैरेक्टर। सर अगर हेलो और वर्ल्ड के बीच में \b लिखेंगे तो हेलो और वर्ल्ड एक साथ आएगा, प्रिंट होगा कंबाइंड फॉर्म में। हेलो और वर्ल्ड में क्या लिखेंगे? बीच में \b। आपने ऐसे लिखा है यस सर। और मैंने ऐसे लिखा था। अगर आप ऐसे लिखोगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा, अगर आप स्पेस डालने के बाद लिखोगे इट विल बी हेलो वर्ल्ड, क्योंकि वो फिर स्पेस को खा जाएगा, उसने एक ही तो उड़ाना यस है। सर। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? Also, Okay, let's come to next question. Anyone who knows this? Anyone having this idea? How yes does this sir, assignment पता operator है। works? पता है? Okay, let's come to this. So हम अभी तक क्या करे थे? Let's say I have int a equal to 10 and int b equal to 20. अगर मुझे ऐड करना था तो मैं कैसे करता था? int c equal to a plus b, a plus b, yes or no? Yes sir. यस सर। यस सर। ठीक है, इसका आंसर हमें पता है 30 आएगा, बट नाउ लेट्स से दैट आई डोंट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं इतने सारे वेरिएबल भी लूं और इतना सारा लंबी लाइन लिखूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिखूं a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होगा? एनीवन, एनी आइडिया? A is equal to A plus B यस, और फिर वो प्रिंट कर लो। जो हमारी ये लाइन है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारा एक कंबाइंड काम कर रही है। वो क्या कर रही है? a इक्वल टू a प्लस बी कर रहा है, तो a इक्वल टू a प्लस बी को हम a प्लस इक्वल टू b लिख सकते हैं। सो नाउ माई a विल गेट अपडेटेड टू 30 एंड नाउ इफ आई प्रिंट a, my answers will be a as 30 and b as 20. So if I want to print these values, %d, a comma b, सर तो इसके अंदर हमें थर्ड वेरिएबल मतलब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे 30 20 आ रहा है, आसान है। यस सर। सेम इज एप्लीकेबल टू अदर थिंग्स आल्सो। माइनस इक्वल टू का मतलब है वो माइनस कर देगा। नाउ इफ आई रन दिस, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 10 माइनस 20 कर रहा हूँ, a इक्वल टू a माइनस भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 माइनस 20 is -10. -10. now my a will be -10, b will be 20. समझ आ रहा है जी? आसान है, सर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। Similarly, you can do it on your end now. This star equal to means multiply equal to. It means a equal to a into b. This divide equal to means a equal to a divided by b. Mod equal to का मतलब है a equal to a mod b. Easy है, हो जाएगा। तो मतलब हम एक ही वैल्यू चेंज कर रहे हैं बाय दिस। हाँ, तो मतलब हम हमारा काम आसान कर रहे हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर का ही बोलेंगे, बट देन दिस इज माय शॉर्टकट टू डू दिस काइंड ऑफ अ वर्क। तो मैं इतना बड़ा लिखने की बजाय ऐसे छोटा सा लिख के काम जल्दी कर लूंगा। ठीक है ओके जी, सर। ओके। बाकी सारे फंक्शंस को भी वैसे ही यूज करेंगे ना, जैसा हाँ भी यूज हाँ, किया। ओके। यस। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली पॉइंटों में हमारा मॉड नहीं होता।
ठीक है, मॉड हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो आप फ्लोट मत लेना। जब आप a अपॉन b करोगे तो उसको एज ए फ्लोट मत प्रिंट करवाना, मॉड हमेशा एज ए इंटीजर प्रिंट होता है, बस इतना ध्यान रखना। और ये पावर पे भी एप्लीकेबल है? पावर मतलब कैसे? सर a इज इक्वल टू a टू द पावर b। एक को ए पावर भी तो कुछ होता ही नहीं है, पावर फंक्शन यूज करना पड़ता है उसके लिए, उसके लिए ऐसा, ओके सर। क्योंकि आप ये लिख नहीं ना सकते। अगर आप ये लिखना चाहो a इक्वल टू a पावर b, मतलब ऐसा तो मैंने सिखाया ही नहीं, और ये एक्चुअली पावर है भी नहीं, ये तो एक्सॉर ऑपरेटर है। इनफैक्ट पावर का तो इसमें कोई एज इट इज फंक्शन ही नहीं है, ये Yes, sir. एक्सॉर ऑपरेटर है ये वाला, इसको हम एक्सॉर यूज करेंगे बाद में, अभी नहीं यूज करेंगे। ओके, सो assignment operator assigns right hand side value to left hand side variable. Okay, use this idea to interchange the values. You may need a third variable. So tell me, how will you do this thing? You have to swap two variables. बताओ कैसे करोगे? वो How to एक swap two तीसरे variables? में एडिशन एक तीसरे में सब्ट्रैक्शन से हो पहले जाता है। सर एक तीसरे वेरिएबल लेंगे, उसमें सेकंड की वैल्यू स्टोर कर देंगे। देखो, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे अब, I can write this as c equal to, क्या आएगा, बी डाल दो। c equal to a equal to b and b equal to c। अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या हो रहा है, c को 10 मिला, यस सर, यस सर, a को 20 मिला, यस सर, उसके बाद b को 10 मिल गया, तो वैल्यू स्वैप हो गई है। यस सर। सो नाउ इफ यू प्रिंट दिस थिंग, यहाँ पे अगर मैं a और b की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, जिसके बाद मैं न्यू लाइन कर दूंगा ताकि मेरा अगले वाले पे भी इफेक्ट ना आए, वो चिपके ना। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो क्या हो रहा है, इनिशियली 1020 था, बाद में 2010 बन गया, 2 बार प्रिंटफ लगाया हमने। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर विदाउट अगर थर्ड वेरिएबल लेना हो तो भी आसान है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो मैं विदाउट थर्ड वेरिएबल में ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू a प्लस बी, इनफैक्ट शॉर्टकट मारते हैं यार, अभी सीखा है, a प्लस इक्वल टू बी, उसके बाद b इक्वल टू, नहीं, a को हमने कर दिया a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a बन गया 30, और अब 30 को 20 बनाना है तो फिर -10 करेंगे। अरे रुको यार, b इक्वल टू a माइनस बी होता है, करके देखते हैं, लिख ही लेते हैं पूरा, क्योंकि फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी। क्या हुआ इसमें, a के पास मेरे पास आ गया 30, और अब यहाँ पे जब a माइनस बी करेंगे तो मेरा 30 माइनस 20 होगा, मतलब 10, तो b को तो 10 मिल गया। नाउ a विल बी इक्वल टू a माइनस बी, तो a इक्वल टू a माइनस बी करने पे 30 माइनस 10 करा तो मेरा 20 आ गया। अगेन द आंसर इज फाइन। हाँ जी, हो गया जी स्वैप। यस सर। तो इसको देख लो कैसे किया है। Now you have seen that we can swap the values using third variable and without using third variable. Can anyone tell me that how will we do this in a single line statement? अगर मुझे ये 3 लाइनें नहीं लिखनी, मुझे ये 3 लाइनों का काम सिंगल लाइन में करना, how will I do it? सर एक बार पहले आप ये स्वैप वाला फिर से बता दो, ये लास्ट वाला, फर्स्ट वाला समझ आ गया था। इसमें कुछ नहीं है, आप वैल्यू डाल के देख लो ना, a इक्वल टू a प्लस बी क्या बना, 30 हुआ यहाँ पे। यस सर, वो सब वैल्यू समझ आ गई कैसे है, तो वो लेकिन स्वैप कैसे हुआ है वो? स्वैप हो गया क्योंकि उसके वैल्यू अपडेट हो गए हैं। इन दी एंड तो हमें वैल्यू अपडेट करने थे ना उसके, ए का वैल्यू बी में चाहिए था, बी का वैल्यू ए में चाहिए था, और हमारे वो चीज हो रही है सॉल्व। यस सर, इट्स जस्ट अ टेक्निक, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको बस। क्लियर सर। ठीक है, अब मैंने तो ये चीज बहुत पहले पढ़ी थी, मैं तो जस्ट बाय यूजिंग अ बिट ऑफ ब्रेन के मुझे क्या करना है मैंने अपने आप बना लिया। अदरवाइज बहुत जने इसको याद भी रख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी ए लिख दो और यहाँ पे a प्लस बी एंड 2 टाइम्स a माइनस बी,
but you Yes, should sir. know that what is happening here, right? Yes, सर हम So लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ना वैल्यू स्वैप करने के लिए। अभी तो हमने इतने सारे फंक्शंस यूज किए, लाइक a प्लस इक्वल्स टू b उस टाइप से। a प्लस इक्वल, अब कैसे करोगे ना, अब अगर आप यहाँ पे a प्लस इक्वल टू बी कर भी लोगे तो a इक्वल टू a प्लस बी तो हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी कर सकते हो आप, इस वाले को कैसे वो प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू लगाओगे बताओ? क्योंकि यहाँ पे ये दो वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे तो a इक्वल टू a था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे b इक्वल टू a माइनस बी है, कैसे करोगे इसका? कंबाइन ही नहीं हो सकता ये तो, यस प्लस इक्वल टू भी नहीं आएगा, माइनस इक्वल टू भी नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे आप कर सकते हो, ये वाला माइनस इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू इज अवेलेबल इन द फर्स्ट एंड थर्ड वन, बट दिस वन डज नॉट हैव दैट ऑप्शन। सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना, b माइनस इक्वल टू प्लस a। बी, आप कह रहे हो बी माइनस इक्वल टू ए, यही कह रहे हो? प्लस ए क्या होता है? ये तो एरर हो गया ना। प्लस इज वन ऑफ द ऑपरेटर विच रिक्वायर्स टू थिंग्स, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तभी वो उनको ऐड करेगा। बी माइनस इक्वल टू प्लस ए कुछ नहीं होता, बी माइनस इक्वल टू ए होता है। तो आप इसका मतलब बी इक्वल टू बी माइनस ए कर रहे हो, वो तो हमने यहाँ पे नहीं कर रहे। ओके सर। ओके तो एक बात बताओ, अब अगर मैं इन तीनों को सिंगल लाइन में करना चाहूँ, या फिर चलो एक और, लेट मी टेल यू वन मोर वेरी स्मार्ट वे टू डू इट। आपको ये प्लस माइनस के चक्कर से निकलना है तो बस एक काम करो, तीनों की जगह XOR लगा दो, खत्म कहानी। अगर आप इसको रन करोगे इट स्टिल गेट्स द वर्क डन। सर XOR का मतलब स्वैप? नो, XOR का मतलब क्या होता है आप बताओ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ XOR? सर एक्सॉर गेट सुना है मैंने। XOR गेट की ही बात कर रहा हूँ मैं, ये XOR गेट ही है। अच्छा, वो अपना जो बूलेंस का होता था। यस लॉजिक गेट है एक एक्सॉर हाँ गेट, हाँ। हाँ, याद तो नहीं आ रहा अभी। अभी बता तो देते हैं, अभी वो बताते हैं। a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस b इंटू a कॉम्प्लीमेंट ऐसा कुछ था। हाँ तो उसमें एक चीज होती है, बेसिक सा रूल है, अगर आप उसको उतना याद भी नहीं करोगे, अगर सेम बिट है तो आंसर 0 होगा अगर आप XOR करोगे। अगर ऑपोजिट बिट हैं तो अगर आप उसको XOR करोगे द आंसर विल बी 1। दिस इज द बेसिक रूल, ठीक है जी, समझ आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैंने पहले करा a इक्वल टू a XOR b। सपोज मेरा a 3 था, 3 क्या होता है? 1 1। यस तो सर इसको बाइनरी में करना पड़ेगा। ऑब्वियसली Yes, sir, 1 1 बैक एंड पे वो बाइनरी होगा। 3 को कैसे 5 को कैसे लिखते हैं? 1 0 1। 101. 101। तो 1 1 कैन बी रिटन एज 0 1 1। यस सर। इसको XOR करो, क्या बना? 1 1 0। यस सर। यस सर। So my a is now 6 at this point. After this first statement, a is equal to 6. Yes or no? यस सर। यस सर। अब दोबारा से करेंगे b इक्वल टू a XOR b। सर आपका साइड का दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर सब कुछ। ये सर तो जो दिख रहा आपने है, राइट में लिखा है। मैंने b इक्वल टू a XOR b लिखा है, ये दिखना चाहिए सबको यार, तुम अपना स्क्रीन सेट सर दिख करो। रहा है। दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो b इक्वल टू a XOR b करेंगे। नाउ माय a इज इक्वल टू दिस थिंग 1 1 0। तो मैं 1 1 0 को XOR विद b करूंगा। b क्या था? 5 था। 5 क्या होता है? 1 0 1। इसको XOR करेंगे, द आंसर इज 0 1 1। यस और नो? यस यस सर 3 इज दिस इक्वल टू 3? तो 3 मेरा आ Yes. गया जी यहाँ पे, b को 3 मिल गया, a को 6 मिल गया था। नाउ इफ आई डू अगेन a इक्वल टू a XOR b, सो मुझे क्या करना है? 6 को और 3 को आपस में XOR करना है। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या आएगा? 1 0 1 विच इज इक्वल टू 5। ये लो जी आपका हो गया स्वैप। तो 3 b को मिल गया, 5 a को मिल गया, काम खत्म। आसान ये है सही है। ये आसान है ना? यस सर। एक और आसान तरीका बताता हूँ, ये जो ये सही है निकला है, एक और ये सही निकालते हैं। इसको तीनों को सिंगल लाइन में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कहाँ से आया सिंगल स्टेटमेंट? ये कहाँ से आया? यहाँ पे वो चीज वैलिड है। अगर मैं a XOR इक्वल टू b लिखता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूँ सिर्फ, राइट से लेफ्ट जाएंगे,
तो सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करते हैं, a = a XOR b। इसका मतलब है कि मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ, यस और नो, फर्स्ट स्टेटमेंट। सर लेकिन एक चीज है, वो बीच में b = b XOR a हो गया हो तो फिर। सुन तो लो यार, क्यों घबरा रहे हो? यस सर। एक बात बताओ, तुमने बोला b XOR = a, जो अगर हम ये करेंगे तो इसका मतलब b और a को हम XOR कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है a और b को XOR कर रहे हो या b और a को XOR कर रहे हो, आंसर तो वही आएगा। हाँ जी सर। अगर 110 और 010 को कर रहे हो या 010 और 110 को कर रहे हो, रूल तो वही है, आउटपुट तो वही आएगा, ऑपोजिट वालों का 1 है, सेम वालों का 0 है। यस सर। है ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, मैंने बोला अगर मैं करूं a XOR = b XOR = a XOR = b, इसको अगर हम डिकोड करें, दिस वन इज माई लाइन नंबर 7, ठीक है, ये मेरी लाइन नंबर 7 है। b XOR = whatever the result was, this is my line number 8, and a XOR = whatever my result was, this is my line number 9। तो मैंने 7 8 9 तीनों लाइन को सिंगल लाइन में खत्म कर दिया काम को। समझ आ रहा है? सर मतलब कंपाइलर ने इसको फ्रॉम द राइट साइड रीड करना शुरू किया है। Obviously, whenever you use this thing, हमेशा राइट टू लेफ्ट आता है। अगर a = 5 करोगे तो 5 ही तो आ रहा है a में, हाँ यस सर। है ना। a = a + b करा, तब भी a + b पहले सॉल्व होगा तब a में आएगा। तो राइट टू लेफ्ट वाला रूल तो यहाँ पे वैलिड है ही है। ओके सर। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो तो सर बताओ। वो a को 6 और 110 कैसे लिख रहे थे, वो मेरे को नहीं आया। ओके, सो मैंने बोला a = a XOR b होगा फर्स्ट टाइम, लाइन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा a क्या था, 3 था। 3 यस को सर। 3 को मैं लिख सकता हूँ 0 1 1। अरे ये अरे 3 को लिख सकते हो 0 1 1 यार। 2 1s are 2 zeros are, आसान तो है। अगर मेरा ओके 3 सर। डेसिमल नंबर है तो 0 1 1 ही तो है बाइनरी में, अच्छा हाँ यस सर। तो वही तो लिखा है। सिमिलरली 5 को कैसे लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। XOR का सिंपल सा रूल फॉलो करना है, ऑपोजिट बिट है तो 1 आएगा, 1 और 0 भी ऑपोजिट है। अब 1 1 है एंड में तो ये सिमिलर बिट है तो 0 आएगा। a = 110। 110 क्या होता है डेसिमल में, वेट्स इसके ये हैं 1 2 4, तो 4 + 2 = 6। इजी तो है, यस सर। हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको कोड को ऐसे लिख सकता हूँ, a = a XOR = b XOR = a XOR = b। सिंगल लाइन में काम खत्म। एनी डाउट? सर पाइथन में होता है XOR? पाइथन में आई गेस होता होगा, ऐसे तो नहीं है कि इसको यूज ही नहीं करेंगे वहां पे, तो XOR होता इसमें होगा। तो स्वैप एक ही लाइन में होता है, कॉमा b = b, a। यस, हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। तीन मेथड से देख लिया हमने स्वैप करना, तीन Yes. पता नहीं 4 मेथड से। ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू डू इट दिस थिंग, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट राइट ऑपरेशन, बताओ जी क्या होता है। आस्क द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑपरेटर टू योर लेवल इंस्ट्रक्टर। सर हमने नहीं पढ़ा है। कोई ना, बता देते हैं अभी, 1 सेकंड लगेगा। कहाँ गया पेन, ये रहा। अब देखो क्या हो रहा है। लेट्स से दैट आई हैव a = 3। 3 कैसे लिखते हैं, मैंने बोला हम लिखते हैं 0 1 1। यस और नो? Yes sir. इसको अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 करूं, लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब है कि मुझे सारे बिट्स एक खिसकाने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसको मैं अगर एक खिसकाऊंगा तो ये 110 बन जाएगा। यस और नो? Yes sir. ये नहीं समझ में आया। इसमें समझने वाला है क्या भाई, एक एक बिट शिफ्ट करना है। 0 वाला बाहर, 1 1 वाला यहाँ पे, और इधर एक 0 आ जाएगा क्योंकि उधर कुछ था नहीं। इजी तो है। ओके सर। यस सर ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, लेफ्ट शिफ्ट 2, अब 2 जम मारने हैं, प्लेसेस। 1 0 तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो इट इज 1 0 0। यस और नो? यस सर। ठीक है,
तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें ना एक काम करते हैं हम इसको, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे। जब हम इसको स्विच कर रहे हैं ना, जैसे इक्वल टू 3 है 0 1 1, तो इसको अगर मैंने एक शिफ्ट करा तो फिर तो मेरा आंसर ठीक है। पर अगर मैंने इसको 2 बार शिफ्ट करा, 0 1 1 को मैंने करा लेफ्ट शिफ्ट 2, तो मैं इसको ना उड़ाऊंगा नहीं, मुझे डबल जंप मारनी है। तो डबल जंप मारने के लिए तो ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। तो इट विल बी इक्वल टू 0 1 1 0 1 0। 1 0। इसमें हमने कुछ डिलीट नहीं करना, अपने एंड पे अज्यूम नहीं करना कि लिमिटेशन हमारे पास 3 की है। उसके पास जगह है, आप शिफ्ट कर रहे हो, बस एक खिसका के एक न्यू एंट्री करा दी। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने a इक्वल टू 3 को लेफ्ट शिफ्ट 1 किया तो वो 1 1 0 बन गया। 1 1 0 क्या होता है, 6 होता है। यस सर। यस सर। और जब मैंने इसको 3 को लेफ्ट शिफ्ट 2 करा तो ये मेरा बन गया 1100। 1100 क्या होता है, 12 होता है। यस सर। 1 2 4 यस 8 सर 12 16 होएगा। तो 12 होगा। अब यहाँ से हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है, लेफ्ट शिफ्ट 1 करने पे ये हुआ 6, इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। डबल हो गया, यस सर। अगर मैंने उसको लेफ्ट शिफ्ट 2 करा तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तभी वो 12 आया था। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर है एक तरह का। अगर ये 1 है इसका मतलब इट इज मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 रेज़ पावर 1। अगर ये 2 है इट इज मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 रेज़ पावर 2। अगर मैं अब ये 4 करूंगा तो दिस थिंग विल गेट मी एन आंसर ऑफ 3 into 2 to the power 4 which is equal to 48। यस सर। यस सर। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से दैट आई वांट टू यूज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो मैं फटाफट से इसको ऐसे लिखता हूँ, परसेंट डी ही रखेंगे जी। ए लेफ्ट शिफ्ट 1, अगर सिर्फ एक की जंप मारी तो 2 रेज़ पावर 1 होता है 2, मतलब 3 दूनी 6, आंसर आएगा 6। आसान है। यस सर। जी। नाउ इफ आई डू दिस इट विल बी 2 रेज़ पावर 2, मतलब 4 टाइम्स, आंसर आएगा 12। यस और नो। यस सर। सिमिलरली इफ आई डू इट फॉर रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 5 होता है 32, 32 into 3 96, आंसर आएगा 96। इजी है। यस सर। यस ओके, सर। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी। व्हाट अबाउट सर दिस। वो डबल लेस का मतलब होता है कि वो बाइनरी डिजिट्स की पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ही ये होता है राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। ये जो लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल यही है, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। ओके सर। ये एक्चुअली इन्होंने उल्टा लिख दिया, शिफ्ट लेफ्ट वाला ये वाला है, ठीक है, और शिफ्ट राइट वाला ये वाला है। इन्होंने ये ब्रैकेट में उल्टा लिख दिया क्वेश्चन में, बट इट इज लाइक दिस। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर रहे हो इट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, आसान हो गया। अब इसको मैं राइट शिफ्ट वाला करने लगा हूं। अगर मैं राइट शिफ्ट 1 कर देता हूं इसको, और नंबर में थोड़ा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि इस बार डिवाइड करना मल्टीप्लाई नहीं करना, तो लेट्स डू इट फॉर 300। तो अगर मैंने इसको राइट शिफ्ट करा 300 को, पहले मैं क्या कह रहा था, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 होगा, तो इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो आंसर विल बी 150। 150। यस सर। 2 करूंगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो 300 बाय 4 75। आसान है। हाँ जी। यस सर। इनवर्स ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई हाँ डिवाइड। यस यस। अच्छा एक बात बताओ, अब डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर विल बी दिस 37 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उन्होंने 37 लिख दिया क्योंकि वी आर यूजिंग परसेंट डी। ठीक है, नाउ इफ आई डू दिस, आपको ये समझ में आ गया हो क्या रहा है। नाउ इफ आई डिवाइडेड बाय 2, 3/2, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1। 3/2 इज 1.5, तो वो 0.5 उसने खा लिया, परसेंट डी था। नाउ इफ आई डू इट डिवाइड बाय 4, तो 3/4 क्या आएगा आउटपुट, 0। 0। गुड, आसान है, समझ आ गया क्या हो रहा है। सर हर बार वो Yes, sir. 2 रेज़ टू द पावर हो जाएगा जो भी हम लोग लिख रहे हैं उस ऑपरेटर के बगल में, लाइक यहाँ पे 2 या 3 या 4, सो वो 2 रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ हाँ, अब देखो ऐसा। इसमें सीखने वाली बात क्या थी, टेक अवे पॉइंट क्या है इस थिंग में, इन दिस थिंग, व्हेन वी आर यूजिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर,
we are dividing it with 2 raised power whatever the value is. ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. बट इफ यू आर doing it this thing, you are multiplying it by 2 raised power, dividing by 2 raised power or multiplying by 2 raised power depends on your left shift and right shift operator. Easy है. यस सर. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स यूटिलाइज द टर्नरी ऑपरेटर. अब सारी असाइनमेंट मैंने ही करनी है तो फिर तुम्हारा होमवर्क क्या हुआ यार. देखो, यूटिलाइज द टर्नरी ऑपरेटर, ये आपका इफ एल्स है. हैव यू बीन टॉट अबाउट दिस टर्नरी ऑपरेटर? नो सर. No, sir. नो सर. So, ओके, सुन लो, इजी है, बहुत आसान है. टर्नरी, अच्छा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है बताओ. जो दो इनपुट्स पर काम करे. दो इनपुट्स पे 0 1 पे काम करे. देखो, प्लस है, माइनस है, या मल्टीप्लाई है, या डिवाइड है. इनको ए और बी के फॉर्म में दो ऑपरेंड चाहिए. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना दैट ए प्लस बी, इसमें मेरा जो ए है और बी है ये दो ऑपरेंड है, इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है. हियर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑपरेंड है. एंड here my plus is the operator which is working on those two operands. समझ में आ रहा है? यस सर. Yes. ऐसे ही एक प्लस प्लस होता है, इसका मतलब पता है आपको? No sir. प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब है +1. बस ठीक है, अगर मैं यहाँ पे int a इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस कर दूं और अब मैं इसको प्रिंट करूं %d, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a, तो आउटपुट मेरा 6 आएगा क्योंकि उसने क्या करा है, उसने a में +1 कर दिया. a प्लस प्लस का मतलब है a इक्वल टू a+1. अब ये चीज कोई बोलेगा कि अगर मैं 3 बार प्लस डाल दूं क्या वो +2 कर देगा? नहीं, प्लस प्लस का मतलब है सिर्फ 1 के साथ ही खेलेगा वो. ठीक है, रूल है कि प्लस प्लस का दो मतलब बार है, मल्टीप्लाई डाल दिया फिर. नहीं सिर्फ ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ही होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होता. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a माइनस माइनस कर देता प्लस प्लस की बजाय, तो मैं एक माइनस कर दूंगा, बाकी कुछ नहीं होगा. 5 में से वो एक निकाल के आंसर 4 दे देगा. प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं जो ये सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है. तो व्हेन आई यूज दिस प्लस प्लस ऑपरेटर, इट इज यूजिंग, इट इज कॉल्ड, जैसे बाइनरी होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, सिंगल ऑपरेटर होता होगा, मतलब इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है. बट देन यू, इसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, याद आ गया. इट इज यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर मीन्स दैट यू आर वर्किंग ऑन सिंगल ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड. यूनिटरी है टर्नरी. देखो, अब प्लस प्लस का मतलब था कि आप सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हो तो यूनरी हो गया. प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बाइनरी ऑपरेटर था, मतलब मुझे ए और बी दो चाहिए थे. टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है कि मुझे अब 3 ऑपरेंड चाहिए, 3 जने चाहिए तो मेरा काम बनेगा. ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ पूरी सी में एक ही होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन. इसका मतलब ये है, अगर मैं ये करूं इफ, चलो सीधा लिख लेते हैं यार, 5 mod 2 इक्वल टू 1, अगर मेरा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो प्रिंट ऑड नंबर, एल्स एक और चीज बताऊंगा आपको, प्रिंट
इवन नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगा ही लेता हूँ ब्रैकेट थोड़ा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया अभी, अभी टर्नरी ऑपरेटर यूज भी नहीं हो रहा। मैंने क्या करा है, मैंने लगाया इफ स्टेटमेंट, इफ माई 5 mod 2 इज इक्वल टू 1, वो 5 मेरा n भी हो सकता था और n आप यूजर से भी ले सकते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ ए प्रोग्राम फॉर योर इवन एंड ऑड नंबर। तो आप mod 2 करोगे मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो ऑड नंबर है, अगर रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो सेकंड चीज में जाएगा और वहां पे प्रिंट कर देगा इवन नंबर। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम योर आउटपुट विल बी ऑड नंबर ऑलवेज, बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। ठीक है, एक चीज बताओ, क्या मैं इसको एक लाइन में लिख सकता हूँ इतनी बड़ी चीज को? if else को हाँ जी, ये पूरे कोड को क्या मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ? वैसे तो देखो, नहीं सर। देखो वैसे तो आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो भी ये कोड चलेगा क्योंकि उसकी बाउंड्री सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं जी, ये मेरा एल्स आ गया और एल्स के अंदर कुछ आ गया, तो मेरा ये इफ एल्स वाला पूरी एक लाइन में आ गया। एंड नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम इट विल स्टिल गिव मी ऑड नंबर एज द आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े clearly we have mentioned that this is the boundary of if and this is the boundary of else। तो मैं अगर इसको अब सिंगल लाइन में करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, now if I want to do this question mark लगाएंगे, हाँ ठीक है मेरे को याद आ गया कैसे करते हैं। सो 5 mod 2 is equal to 1, अगर ये है तो प्रिंट कर दो ये, वरना आप एल्स करना चाहते हो तो आप कर दो ये। I'm not 100% sure if this will work, it should work, क्योंकि लॉजिक यही है कि आप पहले कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो ये वाला एरिया चला दो, अगर फॉल्स है तो सेकंड वाला एरिया चला दो। लेट्स रन इट, एरर आ रहा है। ओके सो आई थिंक इट विल नॉट कम हियर। हाँ ठीक है चल गया। सो माई इफ एल्स इज वर्किंग लाइक दिस, सेमीकोलन का एरर इसलिए आया था बिकॉज सेमीकोलन मींस दैट माय स्टेटमेंट इज ओवर, बट देन टर्नरी ऑपरेटर का मतलब भी ये है कि वो तीन चीजों का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो टर्नरी ऑपरेटर है it is using three things, this is the first operand, this is the second operand, this is the third operand। if you have a doubt you can ask। if else को बस हमने इसको टर्नरी की फॉर्म में ऐसे डाल दिया। मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब हमेशा इफ ही है। यस तो सर इस पर टर्नरी क्या हुआ, बस एक सिंबल दे दिया है। टर्नरी का मतलब बस यही है कि आप एक बार में तीन चीजें यूज कर रहे हो विद इन दिस वन स्टेटमेंट। सर अगर 4 से ज़्यादा हो, जैसे एल सिफ करके हम लिखते हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा हो, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, तो नहीं यूज़ कर सकते ना? नहीं, आई थिंक यू कैन यूज मल्टीपल टर्नरी। अब आप इसके अंदर दोबारा से एक टर्नरी लगा दो, वो फिर इफ के अंदर इफ हो जाएगा काइंड ऑफ। ओके, हाँ ठीक है, जी, यस। ओके सो टर्नरी वाला भी हो गया। नाउ हाउ टू यूज दिस साइज ऑफ फंक्शन, लेट्स डू इट फॉर char int long int float and double। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग बिफोर दैट, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंड नंबर्स? साइंड इंटीजर क्या होते हैं, किसी को पता है साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर्स? साइन मतलब नेगेटिव हो गया। साइंड मतलब उसमें नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला दोनों होंगे, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव होंगे। कैसे? अगर मेरे पास लेंथ है 4 बिट्स की, तो 4 बिट्स में मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं? 16।
यस यस सर। ठीक है। तो साइंड में तो वो 16 की रेंज होगी 0 to 15, वो आपको पढ़ाया भी गया होगा दैट इफ यू आर यूजिंग 4 बिट्स योर लिमिट इज फ्रॉम 0000 टू एंड दूसरी साइड -16। 1111। ठीक है। नहीं नहीं जल्दी मत करो यार, दिस इज 0 to 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनसाइंड। तो साइंड वाले में क्या होगा, लिमिट तो देखो वही है, लिमिट इज 00 to 1111। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, if I want to do it for signed numbers में we have to divide that 0 to 15 को into two parts and it will be -8 2 plus 7। इसका मतलब क्या है, it will be -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7। तो these are the 16 numbers now within those 4 bits using signed format। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? सर ये -16 से +15 नहीं होना चाहिए था? नहीं, अगर आप -16 से +15 कर दोगे, ठीक है, अगर आप -16 से +15 कर दोगे तो ये टोटल 32 नहीं हो जाएंगे? यस सर। अपने पास तो 16 की लिमिट है, 4 डिजिट में तो सिर्फ 16 की लिमिट है। तो इसका मतलब साइंड नंबर कैसे काम करते हैं, इन साइंड नंबर्स इफ यू हैव लेट्स से n बिट्स, ठीक है, ये मेरे n बिट्स हैं, and within this n bit my range should be minus of 2 to the power n minus 1 to 2 to the power नहीं एक सेकंड, एक गलती हो गई है, इट शुड बी -2 to the power n -1 ही आएगा, ठीक है, 2 2 to the power n -1 -1। इसको ध्यान से देखना, अगर मेरा n इक्वल टू 4 बिट्स है तो मैंने फॉर्मूला में डालनी है वैल्यू, इट विल बी -2 to the power 3 to 2 to the power 3 -1 which is equal to -8 to 7। क्लियर हो गया इस फॉर्मूला में वैल्यू डालने पे? सर जैसे 1 बाइट तो होता ये है फॉर्मूला है क्या? इट इज द रेंज ऑफ साइंड नंबर्स, साइंड फॉर सम गिवन नंबर ऑफ बिट्स। साइंड इंटीजर्स रेंज फॉर n बिट्स, ये फॉर्मूला है। सर। हाँ जी, सर जैसे हम 1 बाइट की रेंज कहते हैं तो वो -128 से 127 कहते हैं। प्रूव करता हूँ क्यों कहते हैं। 8 बिट्स है, यस सर। 8 बिट्स में मैक्सिमम कितना जा सकता है नंबर, 0 2 से ले raised to 0 to 2 to the 2 to 255 आएगा ना, 0 to 255, टोटल 256 होंगे क्योंकि 2 to the power 8 is equal to 256। That's why the range will be 0 to 255 for unsigned। अच्छा सर मैंने वो ऐसे मतलब देखा था कि वो फर्स्ट वाले को हम वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देते हैं और फिर फर्स्ट वाले जो राइट साइड वाले को 0 देते हैं, ऐसे करके किया था। सुन लो, जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है। क्या होता है, लेट्स से वी हैव 8 बिट्स, तो मुझे पता है कि जो इसका सबसे पहले वाले का वेट है वो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 32 64 128, यही होते हैं वेट्स। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब जब इसका वेट मैक्सिमम है तो फिर ये एमएसबी हुआ ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका वेट सबसे मैक्सिमम है तो इसकी वेटेज ज्यादा है। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वेट क्या है, 1 है, 2 to the power 0, तो इसका वेट सबसे कम है तो ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये तो यस हो गया सर। ये वाला कंसेप्ट। साइंड नंबर में ये रेंज कहाँ से आई, बिकॉज आई वांट टू नाउ डिवाइड दिस 256 इनटू 2 हाफ्स, सो दैट्स व्हाई अगर मैं उस फॉर्मूला में वैल्यू डालूं इट विल बी -2 to the power 8 -1 से लेके 2 to the power 8 -1 -1, तो मतलब -128 to 127, ये यहाँ से रेंज आई है साइंड नंबर्स की। क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर डाउट? तो अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, मैं इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई, बिकॉज नाउ योर क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू फाइंड द साइज ऑफ दिस फंक्शन। साइज ऑफ कैर क्या होता है, 1 बाइट होता है, यस और नो? यस सर। तो अब हम वही चीज प्रिंट करवाएंगे क्योंकि मुझे पता है मेरा कैर 1 बाइट का है, 8 बिट्स यूज करता है।
So we will get this thing. Let's say I'm writing this char a equal to maybe कैपिटल A, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे a एक करेक्टर है, करेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट द साइज, तो बहुत आसान है, printf %d, क्योंकि साइज तो उसका नंबर्स में ही आएगा ना कि कितना बाइट है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके। तो मैं एज ए इंटीजर प्रिंट कराना चाहता हूँ क्या, साइज ऑफ a, जो कि मेरा एक करेक्टर था। इफ आई रन दिस नाउ, long unsigned int a is a char, तो साइज ऑफ a कैसे निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते। 1 second, if I do this thing size of a, तो फिर हो जाएगा क्या, नहीं। साइज ऑफ a कैसे निकालेंगे, गिव मी 1 second। size of operator in C, it will work generally, size of का मतलब है हमें उसका साइज देखना है, so it should be, होता तो ऐसे ही है, परसेंट z। let's do one thing, if I write here %z, no, हाँ जी, anyone who knows that how will we do this? So पिछले वाले में तो एरर वो ब्रैकेट के पास ही दिखा रहा था ए के। अब देखो क्या है यार, मैंने क्या किया है, %f किया है, %d किया है, बिकॉज आई वांट टू प्रिंट द साइज ऑफ a, एंड बिकॉज आई नो दैट माय कैरेक्टर a है। अब मुझे इसी a को तो यूज करना है, तो बस मैंने उसको a को यहाँ पे डाल दिया और ब्रैकेट, और तो क्या ही तो वो आएगा तो वो इसमें। पर्सन सी नहीं होएगा कार के लिए। मैं %c कब डालूंगा, आई विल राइट %c अगर मैं इसको कैर को प्रिंट करवाना चाहूँ, अच्छा ओके। बट मुझे उसका साइज प्रिंट करवाना है। अगर आप ये करोगे, दिस विल रन फाइन, ठीक है। वो परसेंट एलयू वगैरह नहीं डालते लेंथ के लिए शायद। लेंथ लेंथ नहीं निकाल रहे हम साइज निकालना चाहते हैं। we want to get the size of that particular variable। इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ कोई चीज मिसिंग है। वो लेट्स डू वन थिंग, ए बड़ा डाला था आपने वो, मतलब उसमें साइज ऑफ करके। नहीं, छोटा ही है, आपके सामने है। नहीं, आपने वो कैर में तो बड़ा डाला ना शायद। वो वैल्यू थी कैर की, वेरिएबल छोटा ही था। लेट्स डू वन थिंग, हम सिर्फ ये लिख देते हैं साइज ऑफ इंट। तो इफ आई रन दिस, ये अभी भी यही पंगा कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। फॉर्मेट % एक्सपेक्ट्स argument of type int, but argument has argument 2 has type long unsigned int। साइज के पास स्पेस तो नहीं आएगी? सर हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम साइज ऑफ लगा के उसे किसी और वेरिएबल में सेव करके फिर अगर कर दें तो। हाँ, ऐसे कर देते हैं। सपोज I do this, int a equal to 10, int let's say my size will be answer equal to size of a, जो कि मुझे पता है कि a is my 10। now let's print the answer। yes, this works। वो directly वहां पे पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा, but this works, that if you pass the value of a equal to 10 and then you save that size into this variable, so the answer is 4। so similarly what we can do is we can also get it now for char b। I cannot use the same variable name, तो int a के बाद char a नहीं कर सकते,
because that will be violating the rule कि आप same variable को दो तरह के data type दे रहे हो. So I gave the value of this thing. Now let's do one thing that I will keep it as b here. सर वो एक बार बता दो कि 4 कैसे आया था? int का size 4 होता है. अच्छा हाँ 4 बाइट्स ठीक है. 4 bytes. Now if I want to do it for char जो हमने पहले किया था, if I run this, my char is equal to 1. तो char 1 byte का होता है. printf के अंदर size of नहीं चल रहा, उसमें error आ रहा है. So just do it like this. आप अलग से बाहर ही कर सकते हो. ठीक है. Maybe it depends on compiler also. अलग से काम कर रहा है वैसे. Now if I do it for float, it will be float c equal to, या फिर चलो a ही चलने दो, 3.14. Now my a has a float value, क्योंकि अब मेरा जो साइज है वो तो 1 2 3 4 करके बाइट्स में आएगा, इसलिए आई एम नॉट चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ इंट बिकॉज द साइज विल बी 1 2 3 4 ऐसा ही चलेगा, 1 2 4 जो भी है. तो द साइज ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू 4 बाइट्स अगेन. ठीक है. एंड नाउ इफ आई वांट टू डू इट फॉर, और कौन सा था यहाँ पे, लॉन्ग इंट. तो लॉन्ग इंट का कैसे करेंगे? इट विल बी, इसको मैं कर देता हूँ लॉन्ग इंट a. So this is equal to, बड़ा नंबर लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है. तो सपोज मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब मुझे उसका साइज चाहिए. लेट्स रन दिस. 8 bytes. लॉन्ग इंट का साइज इज 8 bytes. क्लियर? सर end का size 4 fixed होता है और long end का 8, right? हाँ, यस. Okay sir. सर एक चीज समझ नहीं आई सर, हमें ऐसे वैल्यू के लिख रहे हैं, हम इसे int a फिर ऐसे लॉन्ग int a, इतनी बड़ी वैल्यूज. वो उठा नहीं रहा ना, सीधा लगा. डायरेक्ट डालने पे उठा नहीं रहा. अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई दिस थिंग कि मैं साइज ऑफ सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग इंट. तो क्या ये उठाएगा? लगता नहीं, क्योंकि लॉन्ग इंट एज इट इज उठा रहा है. ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं. तो हमें सिर्फ इतना लिखना है यहाँ पे. यू कैन पुट द डायरेक्ट साइज, मतलब जो भी आपने चेक करना है, यू कैन डायरेक्टली पुट द इंट और कैर लॉन्ग इंट. अब कौन सा रह गया था? एक रहेगा डबल. सो आप डायरेक्टली लिख दो डबल. ठीक है. तो साइज ऑफ डबल विल बी इक्वल टू 8. तो लॉन्ग इंट एंड दिस डबल, बोथ ऑफ देम हैज साइज ऑफ 8 bytes. ठीक है, हो जाएगा ये. सर एक बार बूल का चेक करना, उसको सर हर बार अनडिफाइंड आता है ना. लेट्स डू इट. bool, yes, it is saying that it is undeclared. यस सर, वही क्लैरिफाई करना था. Now how will you do this one? You have to do division of two numbers using the typecasting. मतलब ये कि double sum by n. तो करें इसको. It means if you want to do this thing now, division of two numbers. तो let's do it. सर टाइप कास्टिंग हमने किया है. ठीक है. तो let's say I'm doing this thing and int b is equal to maybe 50, या फिर चलो 54 रख लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स में आंसर आए. Now we have to do the division ऐसा कुछ करके. तो मैं इसको वैसे रख लेता हूँ as it is double of that by that. So it will be equal to double, and this has to be in brackets, double of a upon b. Let's run this. Now one thing to learn here, both of them were integers initially. अगर मैं डबल ना लगाता, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आता? 1851 आता. एरर ही आ गया क्योंकि it is not expecting that it will be double inside and you're passing a variable of integer here. So what you can do is you can put it double here. तो आपने a को न्यूमरेटर को डबल बना दिया, एक जने को बना दिया, तो आपका काम हो जाएगा. आंसर इज फाइन. एंड ऑल्सो डबल हो या फ्लोट हो,
डबल हो या फ्लोट हो परसेंट एफ ही आएगा, पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई वाज मेंशनिंग दैट अगर आप ये वाले डबल को डिनोमिनेटर में भी डाल दोगे देन इट शुड आल्सो वर्क। यस इट इज वर्किंग, ठीक है। तो आप किसी भी एक के साथ डबल लगा दो या फिर आप इसको किसी के एक भी साथ फ्लोट लगा दो, इट शुड वर्क, ठीक है। दिस इज द आंसर। एनी डाउट इन दिस? सर टाइप कास्टिंग इज बेसिकली पहले हम ए और बी को एक इंटीजर्स डिफाइन कर रहे हैं बट लेटर ऑन हम उसे उन्हें फ्लोट कर दे रहे हैं। कास्टिंग का this मतलब ही ये दैट यू आर situation चेंजिंग द टाइप, ओके सर। यू आर ये चेंजिंग द जस्ट टाइप एक स्टेप कास्टिंग। के लिए हुआ है, ये ओवरराइट होगा, लाइक बी आगे भी फ्लोट ही चलेगा अगर आगे चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो अब यहाँ एक पे, step- यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज के लिए इसको कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे परसेंट, in fact what I will do is I will write it as %d divide by %d is equal to this, तो मैं a comma b comma the result, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, it works. So this assignment will be given to you. Only one question is left. Other 9 have already been discussed. So you people can do this. I will share the Google Classroom link with you. I will look into that sheet. I hope everyone has put their email IDs there. That's all for today. Thank you. सर ये The वाली असाइनमेंट भी assignment अपलोड कर देना, ये है नहीं हमारे पास। हाँ, आपको मैं Google Classroom में when I will be making the Google Classroom today, you will receive an invite in your Thapar email IDs. You have to accept that invite. You will enter that Google Classroom and you will find the assignment there. और वहीं पे आपको क्लिक करके सबमिट करना होगा। Fine. सर असाइनमेंट ऑल्सो 1 एंड सर 2 हाँ दोनों का डेडलाइन नेक्स्ट वीक है क्या? What we will do is I will keep the assignment 1 deadline as 19 and assignment 2 deadline will be maybe 23. Will that Okay, work? sir. यस सर। Yes, Okay. sir. Okay. Yeah. That's all Thank for you today. so Thank you. So if you have Thank Thank you, you, doubt in sir. any sir. one question, can we skip Thank that you, in the sir. assignment? Yes, yes, you can. Okay, sir. Okay, thank you. Bye.